سیاست کو بدنام کرنا ہے، سیاستدان کو بدنام کرنا ہے۔ صدر زرداری اور فریاد تالپور صاحبہ کو اکنامک سروے کی ریلیز ڈیٹ پہ اور بجٹ پیشی کی ڈیٹ پہ اریسٹ کروایا جاتا ہے۔ السلام علیکم، پروگرام دورہ کے ساتھ میں ہوں اسد خان اور میرا ساتھ دیں گے باقر سجاد۔ 40 کی دہائی میں پروڈا ایکٹ ایک نام کا قانون تھا جس کو بار بار کہا گیا کہ یہ ایک کالا قانون ہے اور اس کو ہٹایا جائے۔ 50 کی دہائی میں ایبڈو ایکٹ آیا جو پھر منتخب نمائندوں کے خلاف کارروائی کرتا تھا، اس کے بارے میں بھی کہا گیا کہ یہ کڑا قانون ہے، اس کو ختم کر دیا جائے۔ 90 کی دہائی میں سیف الرحمان صاحب کا احتساب ایکٹ دیکھنے کو ملا جس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کہا کرتی تھی کہ یہ ایک بہت سخت قانون ہے اور اس کو ختم کر دیا جائے۔ اور آج ایک فوجی آمر کا متعارف ہوا قانون نیب آرڈیننس 1999 کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ایک بہت ظالم قانون ہے، اس کو ختم کر دیا جائے۔ پاکستان مسلم لیگ نواز کی حکومت نے نہ صرف وہ ڈرافٹ قانون سازی کی کہ اس میں بنیادی طور پہ ترامیم لائے جائیں، نیب آرڈیننس میں لائے جائیں، لیکن اس پر نہ تو اس کو منظور کروا سکے اسمبلی سے، نہ تو اس پہ کوئی مکمل توجہ دلا سکے۔ اگلی حکومت پاکستان تحریک انصاف کی ایک مختلف قسم کی حکومت تھی، اس کے منشور کا بنیادی حصہ ہی احتساب تھا۔ عمران خان صاحب شاید اسی جوش سے احتساب کا نعرہ لگاتے تھے جس طرح میاں نواز شریف صاحب 90 کی دہائی میں لگایا کرتے تھے، لیکن ان کے دور میں ہر طرح کی سیاسی جماعت کے لیڈر کو گرفتار کیا گیا اور نیب کے قانون کے تحت پروسیکیوٹ کیا گیا۔ اس حکومت نے لیکن بار بار یہی کہا کہ ہم اس قانون میں جہاں معیشت کو نقصان پہنچتا ہے اور جہاں نان منتخب نمائندوں کو کٹہرے میں کھڑا کیا جاتا ہے، کچھ ترامیم لا سکتے ہیں جس سے اس کو زیادہ منصفانہ بنایا جائے۔ سن لیتے ہیں آج کل اسی قانون کے متعلق کیا مباحثہ کیا جا رہا ہے۔ یا تو نیب چلے گا یا پھر اکانومی چلے گی۔ نیب اور کرپشن ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے، نیب اور معیشت ساتھ ساتھ چل رہے ہیں اور ساتھ ساتھ چلیں گی۔ ہر شام کو یہ سنا جاتا ہے کہ جی نیب کالا قانون ہے، کوئی یہ نہیں بتاتا کہ اس میں کالا کون سی جگہ پہ ہے۔ ہر حکومت کو موقع ملا، مختلف پارٹیز آتی رہیں، آپ نے اس کالے قانون کو کیوں ختم نہیں کیا؟ آئیے بیٹھ کر دیکھیں کہ احتساب کے عمل کو شفاف طریقے سے آگے کیسے بڑھانا ہے تاکہ انتقام بھی نہ ہو اور احتساب بھی ہو۔ اب یاد رہے کہ عدالت عظمیٰ کے فیصلے کے تحت پرائیویٹ پرسنز کو بھی نیب کے قانون کے تحت پروسیکیوٹ کیا جا سکتا ہے۔ اب اس حوالے سے حکومت وقت کوشش کر رہی ہے کہ ترامیم لائے جائیں کہ بیوروکریٹ اور پرائیویٹ پرسنز کو نیب کے شکنجے سے چھڑوایا جائے اور ان کو باقی قوانین، چاہے وہ FIA سے تعلق رکھتے ہوں، چاہے FBR سے تعلق رکھتے ہوں، ان قوانین کے تحت ان کا استغاثہ کیا جائے۔ جناب باقر صاحب، ابھی کہنا یہ تھا کہ جی اگر یہ اتنا کالا قانون ہے تو بتائیں کہ کالا کہاں ہے۔ جو کنٹروورسی کی زینت بنا رہا ہے کچھ دیر سے وہ ہے پاور آف اریسٹ۔ چیئرمین نیب آپ کو گرفتار کروا سکتا ہے آپ کی فائل پہ منظوری دینے کے بعد، اور اس حوالے سے آپ کی اکاؤنٹیبلٹی کی جو عدالت ہے وہ ضمانت نہیں دے سکتی، تو آپ کو پھر اس کے بعد عدالت عالیہ میں پٹیشن کرنا ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد عدالت عظمیٰ میں جانا ہوتا ہے۔ اس سے ہو یہ رہا ہے کہ ایمفیسس آپ کا کنوکشن سے ہٹ کر بیل پر جا چکا ہے۔ ٹرائل فریم ہونے سے پہلے ہی آدمی کی بیل نہیں ہوتی، وہ جیل میں بیٹھا رہتا ہے 1 سال 2 سال 2.5 سال، جب تک وہی فیصلہ جب اس کی کنوکشن ہوتی ہے، جب اوپر جاتا ہے عدالت عالیہ میں، تو وہاں پھر اس کو ضمانت فراہم کی جاتی ہے یا وہ پوری طور پہ کوئٹ کیا جاتا ہے۔ کیسے دیکھتے ہیں؟ اسد، یہ جو ہمارا احتساب کا عمل ہے اس پہ تو کوئی دو رائے نہیں کہ احتساب وقت کی ضرورت ہے، اور یہ ہر معاشرے میں ضرورت رہتی ہے کیونکہ کرپشن کا ایک ایلیمنٹ کسی نہ کسی صورت میں ایگزسٹ کرتا رہتا ہے۔ پاکستان کوئی ایکسیپشن نہیں ہے کہ یہاں پر بھی کرپشن ایک کافی حد تک ایک جسے کہہ رہا ہوں ایک کرپشن کا ایپیڈیمک ہے، اور میں نے پہلے بھی ایک دفعہ کہا تھا کہ یہ انٹرنلائز ہو چکی ہے ہمارے
जो पॉलिटिकल सिस्टम है, जो बाकी हमारे माशी सिस्टम है, सोशल सिस्टम है, उसमें इंटरनलाइज होगी। तो हमारे यहाँ एक ज़्यादा कन्विक्शन के साथ इस चीज़ को परसू करने की ज़रूरत है। लेकिन बदकिस्मती से कि जो हमारा एहतसाब का अमल है वो उसको किसी तरह से अवाम में पजीराई या जिसे कहते हैं उसमें पब्लिक ट्रस्ट नहीं है। अब उसमें पब्लिक ट्रस्ट में ना होने की वजूहात तो आपने कुछ का जिक्र कर दिया कि जिस तरह कोई हर क्रिमिनल लॉ जो बनता है उसमें एक प्री अरेस्ट और एक पोस्ट अरेस्ट बेल का कॉन्सेप्ट रहता है, क्योंकि किसी को भी ये मतलब इजाज़त नहीं है कि अरेस्ट को सज़ा के तौर पे काउंट किया जाए। अरेस्ट का मकसद होता है डिटेंशन, ताकि आप को फोर्स किया जा सके कि आप अपने ट्रायल में कोऑपरेट करें और आपको रोका जाए कि मज़ीद आप जो उसमें ख़राबी है वो ना करें। तो लेकिन वो आपके सेंटेंस की तरफ काउंट नहीं होता। और यहाँ पर ये हो रहा है कि ना तो आपके पास पूरे सबूत होते हैं, ना आपका केस मैच्योर होता है, आप उठा के ले जाते हैं। आपकी पूरी इस कार्रवाई का एक पॉलिटिकल फोकस होता है। अब ये शायद कोइंसिडेंस हो कि जो कुछ भी कार्रवाई होती है वो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स के साथ पता नहीं क्यों कोइंसाइड हो जाती है, जिसकी वजह से भी वो परसेप्शन स्ट्रांग हो जाता है। तो इस चीज़ से एक और चीज़ जो फ्लो करती है वो ये है कि जो आपकी नैब कोर्ट्स बनी है, चूँकि नैब के कानून में बेल की कोई प्रोविज़न नहीं है तो नैब कोर्ट्स भी नहीं ले सकती। लिहाजा जो साइलिन हैं या जो मुतासरीन हैं उनको 199 के तहत हायर कोर्ट्स में जाके अपने जो फंडामेंटल राइट्स एनफोर्स करने के अंडर अपनी बेल जो है वहाँ पर करनी पड़ती है। साथ ही साथ अगर आप इस पूरे जो इनके फ्रेमवर्क को देखें तो जो उनकी पब्लिक ऑफिस की भी डेफिनीशन है, क्योंकि अभी फिर से कह रहे हैं ना कि जी पब्लिक ऑफिस होल्डर पे इसको रिस्ट्रिक्ट करना है, वो भी प्रॉब्लमैटिक है कि किस तरह से वो कुछ चंद खास लोगों पर फोकस्ड है। और आपके ये जो आर्टिकल 25(1) है उसकी नफ़ी करती है कि जहाँ पर कानून की और आइन की नज़र में तमाम शहरी बराबर हैं। फिर आपने ख़ुद बात की चेयरमैन की कि पूरे का पूरा निज़ाम एक शख्स पे फोकस्ड है। आप ना वो शख्स ना तो कोई एक ट्रांसपेरेंट प्रोसेस से हो के एक डेमोक्रेटिकली उसकी कोई हियरिंग्स हो के उसको यहाँ लाया जाता है, एक कंसल्टेशन के ज़रिए आता है प्राइम मिनिस्टर और अपोजिशन लीडर के। और अगर पीटीआई की ज़बान इस्तेमाल की जाए तो गठजोड़ भी हो जाता है अपोजिशन लीडर और जो लीडर ऑफ द हाउस के दरमियान, अगरचे आजकल वो चीज़ महाल है, लेकिन उसके पास तमाम इख्तियारात हैं, चाहे वो केस शुरू करना हो, केस बंद करना हो, अपनी जो इदारे के अंदर आपकी अपॉइंटमेंट्स हैं सब की सब हैं। तो इस चीज़ को भी आपको ये जो पावर्स हैं चेयरमैन की उनको भी डिस्ट्रीब्यूट करने की ज़रूरत है। आपको उसके अरेस्ट के जो वारंट्स हैं और फाइनल चीज़ है उसके ऊपर चेयरमैन के ऊपर ओवरसाइट बिल्कुल नहीं है, जिसकी वजह से अब्यूज़ ऑफ पावर हो सकती है। ठीक है, अगर हम उस डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर लें जो शायद इतना इफेक्टिव रिफॉर्म नहीं नज़र आ रहा, वो ये है कि आप जो आपके पास एक स्पेक्ट्रम है, आप एक एंड से दूसरे एंड तक इस तरह मत जाएं। जो सबसे बड़ी बात है नैब के बारे में वो यही है कि आप बात बार बार इंतहाओं की करते हैं। अगर आपने एक्सट्रीम्स की बात करनी है तो एक तरफ आपकी कमेटी है जो आप कह रहे हैं कि सिविल सर्विस रिफॉर्म्स की कमेटी है, उनका भी बार बार यही कहना था कि आप एक सुपरवाइजरी कमेटी बैठाएं। उस सुपरवाइजरी कमेटी की सरबराही एक साबिक हाई कोर्ट के जज करेंगे और कई उसमें ऑफिशियल्स होंगे जो कि ये फैसला करेंगे, चेयरमैन नैब के पावर ऑफ अरेस्ट की सुपरविजन करेंगे कि क्या आदमी गिरफ्तार किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता। उस सुपरवाइजरी कमेटी के पीछे एक 15 अराकीन की पार्लिमानी कमेटी होगी जो कि फैसला करेगी कि कौन लोग सुपरवाइजरी कमेटी को तकर्रर होंगे, और उस पार्लिमानी कमेटी के अराकीन वो लोग होंगे जो उन सियासी जमातों से ताल्लुक़ रखते हैं जिनके 10 से ज़्यादा मेंबरान हों असेंबली में। जनाब, जब आप इस तरह का कॉम्पोजिशन बनाएंगे तो नैब के जितने भी इख्तियारात हैं आप उसको टूथलेस बना देंगे और उसको बेइख्तियार कर देंगे। तो जो आपने शुरू में बात की वो बिल्कुल दुरुस्त बात थी कि इसके जो इंटरनल मेजर्स हैं उनमें बिल्कुल शफाफियत नहीं है, उसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, वो किसी कायदे किसी कानून के मुतालिक चलना चाहिए ताकि आपके पास किसी तरह का SOP हो। तो एक तो ये बात। दूसरी बात जनाब, हम कानून साजी की बात करते हैं, शायद कानून साजी के ज़रिए जुडिशल एटीट्यूड्स को भी देखना चाहिए। अब एहतसाब की अदालत आपके अक्सर सज़ाएँ देती है, सज़ाएँ सुनाती है उन लोगों को जो कि नैब के ऑफेंस के सिलसिले में कटहरे में खड़े होते हैं, लेकिन क्योंकि उसको शायद सही तरह आपने उन अदालतों को
خود مختار اس حد تک نہیں کیا یا اس حد تک مضبوط نہیں کیا. ان کی جو ریڈنگ آف ایویڈنس ہوتی ہے, ریڈنگ آف کنسیڈریشن آف لا ہوتی ہے, وہ کمزور فیصلوں میں تبدیل ہوتی ہے, اور وہ جو کنوکشنز ہوتے ہیں وہ پھر عدالت عالیہ کی سطح پہ یا عدالت عظمیٰ کی سطح پہ اوور ٹرن ہو جاتے ہیں. اس سے ہو یہ رہا ہے جناب کہ آپ کنوکٹ ہوتے ہیں, پھر اکوٹ ہوتے ہیں, اور پھر جب آپ بری ہو جاتے ہیں وہ ڈیسیجن پھر فائنل ہو جاتا ہے سپریم کورٹ کے ذریعے. اور وہی جو ہم نے شروع میں بات کی کہ اس کی وجہ سے نیب کے تمام افسران کا فوکس اب اس چیز پہ ہوتا ہے کہ آپ کو کسی طرح سے جیل میں رکھیں, آپ کی انویسٹیگیشن چلیں ہو گئی لیکن آپ کی ٹرائل کو کسی طرح سے اسی ڈیوریشن میں آپ کو جیل میں رکھیں, اس میں پھر پلی بارگن ہو جاتا ہے اور طرح کی چیزیں ہو جاتی ہیں, لوگ اپروور بن جاتے ہیں, کنوکشن پہ ایمفسس نہیں دیا جاتا. تو ایک تو احتساب کی عدالت میں ضمانت کا اختیار اور احتساب کی عدالتوں کو مزید مضبوط کرنے کی سخت ضرورت ہے, اور جو دوسری ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ اس سے پہلے کہ آپ 15 اراکین کی پارلیمانی کمیٹی اور 10 اراکین کی سپروائزری کمیٹیاں بٹھا دیں چیئرمین نیب کے اوپر, اس ادارے کو مزید شفاف بنائیں اور ایس او پیز اس میں امپلیمنٹ کریں. اچھا, دوسری چیز جو جس کی طرف آپ نے بھی اشارہ بھی کیا کہ اس ادارے کے ابھی کہا جا رہا ہے کہ اگرچہ لا بنا ہوا ہے جسے نیشنل اکاؤنٹیبلٹی آرڈیننس کہتے ہیں, لیکن ادارے کے اندر کے جو لا رولز ہیں وہ ابھی تک انہوں نے فارمولیٹ نہیں کیے, جس کی وجہ سے اس ادارے میں نہ تو انویسٹیگیشن کے کوئی پروسیجرز ویل ڈیفائنڈ ہیں, نہ ایس او پیز ویل ڈیفائنڈ ہے, وہ آپ کو کرنے کی ضرورت ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کو جو اپنا پورا جو ایک کانسیپٹ ہے پلی بارگین کا اور والنٹری ریٹرن کا, اس کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جناب کسی طرح سے جو آپ کے جو لوگ چور ہیں ان کو کسی طرح سے آپ کوئی ایک لیگل وے فراہم نہیں کر رہے کہ اپنے پیسے کو وائٹن کریں. اس میں سلسلے میں جو اب جو کہہ رہے ہیں کہ امینڈمنٹ لائی جا رہی ہے, اور اللہ کرے کہ اپوزیشن اور حکومت کے درمیان وہ اس کا اتفاق پیدا ہو جائے کہ یہ الٹیمیٹلی امپلیمنٹ بھی ہو جائے, لا بھی بن جائے اور امپلیمنٹ بھی ہو جائے. وہ یہ ہے کہ اس میں ایک کمیٹی بنائی جائے گی جو ان تمام کیسز میں فیصلہ کرے گی, اس کو ریویو کرے گی کہ کیا اس کیس میں پلی بارگین دینی چاہیے. پلی بارگین ہونی چاہیے لیکن ایکسیپشن ہونی چاہیے. آپ نے تو اس طرح سے یہاں بنایا ہوا ہے کہ جناب بالکل وہ آئے اور اس کو جیسے رول بنا دیا کہ آپ دیتے جاتے ہیں اور وائٹن تھوڑا سا پیسے دیے اور آپ نے اپنے پیسے وائٹن کر لیے. نہیں جناب, پلی بارگن کا جو اختیار ہے اس کو بھی بہت زیادہ اس کو شفاف کرنے کی اشد ضرورت ہے, لیکن جو چیئرمین نیب کے اوور آل اختیارات ہیں باقر صاحب, ان کو اگر آپ کمیٹیائز کریں گے تو شاید اس ادارے کا کوئی مقصد پیچھے نہ بچے. اس کو ٹرانسپیرنٹ کریں, ایس او پیز لائیں, اور جیسے آپ نے بالکل ٹھیک فرمایا اس کے جو رولز ہیں, کوئی قاعدہ ہوتا ہے, کوئی قانون ہوتا ہے, اس کی روشنی میں ان کے پریکٹسز کروائیں. اور اس کے اوپر چیئرمین کے اوپر تو سے بتا دوں کہ چیئرمین کی ڈیفینیشن میں بھی آپ نے لکھا ہے کہ یہ ٹاپ رینکنگ کوئی ریٹائرڈ ملٹری آفیشل یا سول سروس کا آفیشل یا کوئی جج ہونا چاہیے. کیوں آپ نے ان کے اوپر ریسٹرکٹ کیا ہوا ہے کہ جناب یہی 3 کیٹیگریز کے لوگ آ سکتے ہیں, اس میں دیگر کو بھی لانا چاہیے. آپ کی انٹیگریٹی اور اس کی ریکوائرمنٹ ہونی چاہیے جناب کہ آپ اس کو پرسو کر سکیں. اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ ان کے اختیارات واٹر ڈاؤن کر دیں, ان کے اختیارات کو سٹریم لائن کسی طرح سے کیا جائے تاکہ ابیوز آف اتھارٹی نہ ہو وہاں پر. ایک ایسے آدمی میرے ذہن میں آتے ہیں جن کا طویل صحافتی تجربہ ہے, جن کی انٹیگریٹی پہ بھی لوگ واؤچ کرتے ہیں, شاید وہ ایک اچھے چیئرمین نائب ثابت ہوں. خیر اس پر بات کریں گے, اگلے حصے میں گفتگو جاری رہے گی. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ٹو دو رائے. اب بات کریں گے کچھ آزادی اظہار رائے کی اور کچھ انٹرنیٹ رائٹس کی. ٹویٹر پہ پچھلے کچھ دنوں میں یہ دیکھنے کو ملا کہ پاکستان سے تعلق رکھنے والے اکاؤنٹس کو یونیلیٹرلی بند کر دیا گیا. ان میں ہمارے عزیز فصیح زکا صاحب بھی شامل تھے, اور جب اس پر مزید تفتیش کی گئی تو یہ دیکھا گیا کہ سنگھ پریوار سے تعلق رکھنے والے یا کچھ پرو ہندوستان والے جو اکاؤنٹس تھے وہ آن میس انہی اکاؤنٹس کو نہ صرف فلیگ کرتے تھے لیکن ان کو ٹویٹر سے ہٹانے میں بھی کامیاب ہو گئے تھے. اب پچھلے کچھ دنوں ٹویٹر کے اپنے فاؤنڈر جیک ڈورسی کا اکاؤنٹ ہیک ہوا, اور اس میں بھی انتہائی نسل پرست اور ریسسٹ قسم کی باتیں کی گئیں اکاؤنٹ کی جانب سے.
ट्विटर का कहना था कि हमें पता है कि उनका अकाउंट कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है, हम भी तफ्तीश कर रहे हैं। हमारे साथ डॉन से ताल्लुक़ रखती हैं रमशा जहांगीर हैं। रमशा, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। रमशा, ये बताइएगा, आपका इस मौजू पे एक बहुत दिलचस्प मजमून भी था, ये आपको एक तरह से ट्रेंड नज़र आ रहा है जहां मैस फ्लैगिंग हो रही है और कुछ आवाज़ों को हटाने की कोशिश की जा रही है? अस्सलाम वालेकुम असद। इस हवाले से 3 चीज़ें समझने की हैं। 3 किस्म की मुख्तलिफ रिपोर्ट सामने आ रही हैं। पहली तो ये कि ट्विटर नोटिस भेजता है अपने यूजर्स को कि हमें कोई कंप्लेंट अगर रिसीव हुई है आपके ट्वीट के हवाले से, तो वो आपको बताएगा कि हमें ये कंप्लेंट रिसीव हुई है, इस पे हम एक्शन लेंगे नहीं लेंगे वो बात की बात है, पर हम आपको सिर्फ बता रहे हैं कि कंप्लेंट आई है। इसी किस्म की एक नोटिस उन्होंने प्रेसिडेंट आरिफ अलवी को भी भेजा है और मजीद बहुत सारे यूजर्स ने ये पास वीक्स में ये नोटिस शेयर किए हैं प्लेटफॉर्म पे। तो इसको जहां तक इसकी नोटिस की बात है, हमें ये समझ में आता है कि जो इंडियन गवर्नमेंट है इनका बहुत ज्यादा प्रेशर है ट्विटर पे और वो बहुत सारी रिक्वेस्ट भेज रहे हैं। बल्कि मैंने अपने मजमून में भी लिखा था कि कुछ लीगल रिक्वेस्ट जो ऑनलाइन डेटाबेस पे मुझे मिली हैं इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तरफ से, वो भी सारी कश्मीर रिलेटेड ट्वीट्स के हवाले से थी। दूसरी, लेकिन इसमें यह समझ आता है कि ट्विटर ने बेशक प्रेसिडेंट आरिफ अलवी के खिलाफ भी एक्शन नहीं लिया, उन्होंने सिर्फ एक नोटिफाई किया। दूसरी चीज ये जो अकाउंट सस्पेंशन के हवाले से, जैसे आपने कहा फसीज़ा का भी अकाउंट सस्पेंड हुआ था, वो इंडियन कुछ अकाउंट्स हैं जो मास रिपोर्टिंग कर रहे हैं ट्विटर को, और ये ट्विटर की तरफ से एक मसला है कि उनकी पॉलिसीज और ह्यूमन मॉडरेटर्स कम हैं, जिसकी वजह से ये मैनिपुलेशन हो रही है और ये अकाउंट रिपोर्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से अकाउंट सस्पेंड हो रहे हैं, जैसे फसीज़ा का अकाउंट सस्पेंड हुआ। और तीसरी चीज ये है कि कुछ ट्वीट्स जो कश्मीर से रिलेटेड हैं, ट्विटर की एक पॉलिसी है कि वो उसको सेंसिटिव मार्क कर देता है, जिसका मतलब है कि अगर जब तक आप उस ट्वीट पे क्लिक नहीं करेंगे वो आपको शो नहीं होगी। तो बहुत सारे यूजर्स ये भी कह रहे हैं कि वो ट्वीट्स जो कश्मीर से रिलेटेड हैं वो विदहेल्ड हुई हैं और ट्विटर इसकी तरफ से, तो इसमें कुछ क्वेश्चन आते हैं ट्विटर की तरफ से कि वो सेंसिटिव क्यों मार्क कर रहा है इनको। अच्छा रमशा, और इसके बाद मैं बाकिर साहब का भी सवाल शामिल करना चाहूँगा। जो एक प्रोफॉर्मा किस्म की क्रिटिसिज्म उठ खड़ी हो गई कि इस वेबसाइट ने आरिफ अलवी साहब को क्यों नोटिस भेजा, वो सदर पाकिस्तान हैं, क्या उनमें वज़न था, कंसिडरिंग जैसे आपने कहा कि वो तो नोटिस आपको आ जाता है कि जी ये फ्लैग हुआ है, लेकिन इस पर हम कोई मज़ीद कार्रवाई नहीं कर रहे? बिल्कुल नहीं, इसमें जैसे मैंने कहा इसमें गलती ट्विटर की एटलीस्ट इस पॉइंट पे तो नहीं है, क्योंकि उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया प्रेसिडेंट की ट्वीट्स के खिलाफ। हाँ, इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से वो रिक्वेस्ट आई या किसी इंडियन यूजर की तरफ से आई, वो सोचने की बात है, लेकिन इसमें ट्विटर का तो कोई रोल नहीं है। बिल्कुल रमशा, ये आपने कहा कि ट्विटर का रोल नहीं है, लेकिन ट्विटर का जो मार्ज़ वजूद में आया था उसका मकसद ये था कि किसी तरह से फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को मॉडरेट करे, को प्रमोट करे, लेकिन अब उसकी अपनी जो मॉडरेशन की जो रूल्स हैं वो खुद अंडर क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये आप क्या समझती हैं कि वहाँ पर कोई प्रो इंडियन बायस है जिसकी वजह से पाकिस्तान तो अगर इस तरह की चीज़ें वायलेशंस पॉइंट आउट करे तो वो तो नहीं उन पे कार्रवाई करते, लेकिन भारत की तरफ से जिस रफ्तार और जिस शिद्दत के साथ ये उन्होंने रिएक्ट किया उनकी कंप्लेंट्स पर और उनको एड्रेस किया और यहाँ पर लोगों के अकाउंट्स ब्लॉक किए, और मुझे ये माजी में याद आता है कि 2016 में फेसबुक ने भी इस तरह की कार्रवाई दिखाई थी बुरहानुद्दीन वानी के वाक़े के बाद, जहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में अकाउंट्स को ब्लॉक किया गया था। क्या इन जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पर किसी तरह का एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस है उसमें? बात गारंटी की तो हम नहीं बता सकते, लेकिन जहां तक आप ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट्स देखते हैं, ट्विटर और फेसबुक दोनों एनुअली इसको क्वार्टरली रिलीज करते हैं। जो अभी लेटेस्ट ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट है उसमें कंप्लायंस ट्विटर की ओवरऑल वर्ल्ड वाइड बहुत कम है, और स्पेसिफिकली इंडिया के साथ 2% है, पाकिस्तान के साथ 0% है। अब वो इंडिया के साथ 2% क्यों है और पाकिस्तान के साथ 0% क्यों है? क्योंकि एक तो पहली बात है इंडिया में इनकी लोकल प्रेजेंस है, मतलब इनका ऑफिस है।
दूसरी बात, एक इंडिया बहुत प्रॉफिट मेकिंग रेवेन्यू, IPL से इतना ज्यादा रेवेन्यू आया है ट्विटर को, तो जाहिर है इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी हैं। और एक चीज ये है कि क्योंकि इंडिया में यूजर्स ओवर 34 मिलियन हैं ट्विटर के और पाकिस्तान में मुश्किल से मिलियन यूजर्स हैं, तो यूजर बेस का भी इंटरेस्ट कम है पाकिस्तान के लिए। लेकिन 2% कंप्लायंस रेट इंडिया के लिए भी ओवरऑल बहुत, मुझे नहीं लगता कि इतना सिग्निफिकेंट है कि हम बोल सकें कि आउटराइट बायस है ट्विटर की तरफ से। अब इंटरेस्टिंग बात यह कि जो कश्मीर का मसला है और इशू सबसे ज्यादा ट्रांसपेरेंसी का है कि ट्विटर जब भी उनसे क्वेश्चन किया जाता है कि ये अकाउंट्स क्यों बंद हो रहे हैं और क्यों, ट्विटर कहता है हम बायस नहीं हैं, उन्होंने मुझे भी बहुत दफा यही कहा है। लेकिन फिर जब उनसे पूछा जाता है कि क्या रीजन है कि ये अकाउंट सस्पेंड हो रहे हैं या ट्वीट्स विदहेल्ड हो रही हैं या इतने ज्यादा नोटिस आ रहे हैं, तो वो अपनी तरफ से यही बोलते हैं कि जब तक कोई चीज हमारी पॉलिसी को वायलेट नहीं करेगी हम उस पर एक्शन नहीं लेंगे। और अकाउंट सस्पेंशन जी अच्छा रामशाह, आपको मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ। जो ओवरऑल सवाल पैदा होते हैं ट्विटर के बारे में, अगर एक सेकंड के लिए हट जाएं पाकिस्तान और इंडिया और कश्मीर से, आप मुझसे बेहतर जानती हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के इंतखाब के वक्त भी सवाल उठा था कि शायद ये रूस से ताल्लुक़ रखने वाले बॉट फार्म्स थे जो उस कैंपेन को सपोर्ट कर रहे थे। अभी जो बोरिस जॉनसन की ब्रेक्जिट की कैंपेन है उसमें भी एनालिसिस किया गया कि वहाँ एक बहुत बड़ी जो तादाद थी सपोर्टर्स की, उनके बायो में मेक अमेरिका ग्रेट अगेन लिखा हुआ था, वो सब डोनाल्ड ट्रंप के ही हम ख्याल थे जो कि उस कैंपेन को अनऑर्गेनिकली सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे थे। सवाल वो वाले उठते हैं कि क्या इसको एक मैनिपुलेशन का टूल तस्वर किया जा सकता है? उस हवाले से क्या उस पर मज़ीद प्रोटोकॉल्स लगाने चाहिए कि नहीं? बिल्कुल लगाने चाहिए। जैसे मैंने कहा कि ट्रांसपेरेंसी उनकी नहीं है कि किस तरीके से वो कंटेंट को कंट्रोल कर रहे हैं, मॉडरेट कर रहे हैं, क्यों अकाउंट सस्पेंड होने दे रहे हैं, क्यों यूजर्स मास रिपोर्टिंग के थ्रू, मैनिपुलेशन के थ्रू अकाउंट सस्पेंड करवा रहे हैं, ये सब चीजें उनको देखनी चाहिए। और अब तो बल्कि बहुत ज्यादा देखनी चाहिए क्योंकि पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा ट्विटर बेस्ड हो गई है। और कश्मीर के हवाले से भी यही है कि उनको ये बताना चाहिए। और ह्यूमन मॉडरेशन का सबसे बड़ा मसला है कि उनके ऑटोमेटेड मॉडरेशन ज्यादा है, जिसका मतलब कंप्यूटराइज और ह्यूमन मॉडरेटर्स कम इन्वॉल्व हैं, तो इसकी वजह से मैनिपुलेशन ज्यादा हो सकती है। और वही हो रही है कि इंडियन यूजर्स काफी ज्यादा एक्टिव हैं ट्विटर पे कि वो पाकिस्तानी या प्रो कश्मीर कंटेंट को लिमिट कर सकें, और फिर उनकी गवर्नमेंट का भी इस तरफ बहुत ज्यादा है। रिमशा, इसमें एक और जो असद ने जो बात की इसको आगे बढ़ाते हुए कि आपके आज के जो आर्टिकल था उसमें ये जिक्र था कि जो स्टेट इंस्टीट्यूशंस की तरफ से उनको कंप्लेंट्स रिसीव होती हैं और उनको वो एंटरटेन करते हैं। अब उनकी स्टेट की डेफिनेशन किस तरह से होती है? अब एक तो बज़ाहिर तो मुल्क हैं, लेकिन मुल्क ममालिक में भी फ़र्क है कि कहीं डिक्टेटोरियल रिजीम्स हैं, कहीं बिल्कुल ही को मर्डरस किस्म की रिजीम्स हैं। क्या वो हर रिजीम की जो रिक्वेस्ट होगी उसको एंटरटेन करेंगे जहाँ पर जो कोई रूलर है कि वो अपने लोगों की आवाज़ दबाना चाहता है तो उसको भी ये हक होगा कि जाके ट्विटर से रिक्वेस्ट करके कंटेंट को हटवा ले? ट्विटर का जो विदहेल्ड कंटेंट टूल है ये सबसे ज्यादा गवर्नमेंट्स ने मैनिपुलेट किया है, बेशक वो इंडिया हो। पाकिस्तान ने भी माजी में जर्नलिस्ट को नोटिस आए हैं ट्विटर की तरफ से, क्योंकि पाकिस्तान गवर्नमेंट ने भी यही कंटेंट, यही टूल को इस्तेमाल किया है। और ये ऑल ओवर द वर्ल्ड है, ये सिर्फ यहाँ का मसला नहीं है। तो ये जो टूल है कि लोकल लॉज को रखते हुए वो देखेंगे कि ये कंटेंट आप जैसे पाकिस्तान ने बोला कि ये हमारे लोकल लॉज को वायलेट करता है, तो वो उस कंटेंट को अगर वो समझते हैं कि वायलेशन है तो पाकिस्तान में आप उस कंटेंट को नहीं देख सकेंगे। तो ये इस टूल का ये मतलब है और ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। तो एक जगह ट्विटर कहता है कि हमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन फॉर ऑल है और हमारे लिए फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन प्रायोरिटी है, लेकिन दूसरी जगह उनका ये जो विदहेल्ड कंटेंट टूल है ये गवर्नमेंट्स हर जगह इस्तेमाल कर रही हैं। और इस वक्त भी यही हो रहा है कि इंडिया इस चीज को ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कर रहा है। तो इस टूल की वजह से जो सारा मसला खड़ा हो रहा है, मेरे हिसाब से उनको ये रिव्यू करना चाहिए। रामशाह जहांगीर, बहुत बहुत शुक्रिया शो में शामिल होने का, अपना कीमती वक्त हमें देने का। अगले हिस्से में डिस्कशन जारी रहेगी, स्टे विद अस।
वेलकम बैक टू दो राय। डिजिटल राइट्स पर बात हो रही थी, आज़ादी इज़हार राय पर बात हो रही थी। हमारे साथ हैं रमशा जहांगीर। इन तमाम अमूर पर उनकी गहरी नज़र रहती है। रमशा, ये आप बताती हैं कि पॉलिटिकल एस्पेक्ट से थोड़ा सा हट के, जैसे अभी जैक डोरसी का अकाउंट हैक हुआ, उसमें कुछ बहुत ही रेशियल एपिथेट्स भी बोले। बार बार ये कहा जा रहा है कि सोशल मीडिया अब्यूज़ का और ट्रोलिंग का और उस तरह के अनरिस्ट्रिक्टेड कंटेंट का एक अड्डा बनता जा रहा है। तो उसको सामने रखते हुए क्या ये जो सोशल मीडिया कंपनीज़ हैं ये जान के गैर जिम्मेदार होती हैं? क्योंकि अभी मेरे ख्याल से ये वॉक्स का एक एनालिसिस था कि डोनाल्ड ट्रंप का ही जो अकाउंट है वो मॉनेटरीली $2 अरब से ज़्यादा वैल्यूएबल है ट्विटर के लिए, और उसी वजह से उनकी चाहे जिस तरह की भी कौम परस्त या इंतहा पसंद बातें हैं जिस वजह से वो सदारत तक भी पहुंच गए, उसमें ट्विटर जैसे सोशल मीडिया वेबसाइट का एक इनहेरेंट वैल्यू है। किस तरह देखती हैं आप? तो सोशल मीडिया कंपनीज भी जाहिर है अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट को, क्योंकि वो अब कंपनीज बन चुकी हैं पूरी तरीके से, तो इकोनॉमिक इंटरेस्ट उनके लिए बहुत वाइटल है। और दूसरी बात, ज्यादा प्रॉब्लम आता है ट्विटर की तरफ से, क्योंकि उनकी बज़ाहिर कोई पॉलिसी नहीं है मिस इन्फॉर्मेशन पे या अब्यूज पे। वैसे तो बोलते हैं कि हेट स्पीच वायलेशन है, लेकिन बज़ाहिर फेक न्यूज पे या अब्यूसिव ट्रोलिंग के ऊपर उनकी कोई पॉलिसी नहीं है, जिसकी वजह से ये चीजें बहुत ज्यादा होती हैं। बिल्कुल ठीक जी। बाकिर साहब, आपने भी सवाल मैं इसके बारे में ये सोच रहा था कि अगर जो पिछले सेगमेंट में डिस्कशन कर रहे थे कि इंडिया की तरफ से उनकी स्टेट ने और उनकी स्टेट एजेंसीज़ ने इतनी ज़्यादा जिसे कहते हैं कोशिशें काविशें की कि हमारे सदर को भी नोटिस आ गए। क्या पाकिस्तान, अगरचे मैं इस चीज़ को इनकरेज नहीं करूँगा, लेकिन क्या पाकिस्तान की तरफ से भी जो एंटी पाकिस्तान प्रोपेगेंडा होता है पाकिस्तान से बाहर से, उस पर इतनी ही अटेंटिवली और इतने फोकस तरीके से उन चीज़ों को परसू किया है? लीगल रिक्वेस्ट और जहां तक कंप्लेंट्स की बात है, मैंने मेंशन किया था कि जर्नलिस्ट और एक्टिविस्ट को भी पाकिस्तान में भी नोटिस आ चुके हैं ट्विटर की तरफ से। मतलब पाकिस्तान गवर्नमेंट उनको रिक्वेस्ट, और 2000 से करीब रिक्वेस्ट पिछली ट्रांसपेरेंसी लेकिन रिपोर्ट रमशा, एक चीज़ मैं इसमें, सॉरी आपको कतई कलामी माफ, इस चीज़ में एक और भी तुसी वजाहत कर दें, क्योंकि आपने बात की थी कि वो जिस तरह के हम या कोई स्टेट देता है रिक्वेस्ट, वो कहता है कि हमारे लॉज को वायलेट करते हैं। ठीक है, अगर आपके लॉज को वायलेट करते हैं तो आपके एरिया में विजिबल नहीं हो, वो लॉज शायद बाकी जो ममालिक हैं उनमें तो एप्लीकेबल नहीं है, तो फिर पूरे हर तरफ उन अकाउंट्स को ब्लॉक क्यों किया जाता है? उनके जो मैसेजेस को जो विजिबिलिटी है उनको क्यों ख़त्म किया जाता है? वो इसीलिए होता है क्योंकि जब दो चीजें हैं, एक लोकल लॉज होते हैं और एक वायलेशन ऑफ ट्विटर रूल्स होते हैं। ट्विटर की अपनी भी कुछ पॉलिसीज हैं कंटेंट के हवाले से। तो पहली चीज तो ये है कि अगर कोई कंटेंट वायलेशन है ट्विटर पॉलिसी की, तो वो तो ट्विटर ओवरऑल ब्लॉक कर देगा या उस पर एक्शन ले लेगा। लोकल लॉ का जहां तक बात आता है, वो सिर्फ उसी कंट्री में विदहेल्ड होगा या उस पर एक्शन लिया जाएगा जिस कंट्री से उसकी कंप्लेंट आई है। और वायलेशन ऑफ रूल्स जो ट्विटर के हैं वो बहुत वेग हैं, जिसकी वजह से मैनिपुलेशन होती है और जिसके ऊपर कोई पॉलिसी नहीं है। हेट स्पीच की है लेकिन अब्यूज की कोई ऐसा पॉलिसी नहीं है। अच्छा, हम आज़ादी इज़हार राय की भी अक्सर बात करते हैं। बहुत बार हमारे अपने एक्टिविस्ट ने कहा है कि रियासत पाकिस्तान उनकी आवाज़ को खामोश करने की कोशिश कर रहा है। क्या ऐसा ही है? बिल्कुल है, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से अभी हम लोग ट्विटर को बहुत बुरा भला कह रहे हैं, लेकिन करते तो हम भी यही आए हैं कि जब जरूरत पड़ती है तो हम ट्विटर के पास जाते हैं। और हमने भी 2000 के करीब कुछ रिक्वेस्ट भेजी हैं पिछले ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट के हवाले से। अब ट्विटर मानता है नहीं मानता वो एक अलग इशू है, लेकिन जर्नलिस्ट को भी नोटिस आए हैं और हमारी तरफ से, बल्कि पिछले दिनों रेगुलेशन की भी काफी बात हुई है सोशल मीडिया की। तो ये सारी चीजें बहुत सोचने की है। लेकिन अभी भी मिनिस्टर शीरी मिर्जारी ने कहा था कि ये बहुत बुरा हो रहा है और बायस है और ये सब कुछ है, लेकिन हमें लॉन्ग टर्म तो ये सोचना है ना कि हम लोग किस तरीके से माइनॉरिटी या डाइवर्सिटी ऑफ ओपिनियन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि कैसे इनकरेज कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। अगले हिस्से में डिस्कशन जारी रहेगी, रहिएगा हमारे साथ। There cannot be any justice in a court of law unless
the testimonies produced or the evidence adduced in such courts is based on truth and nothing but the truth. We have fine-tuned the system to eliminate possibilities of adjournments and delays. And that is why the cases which used to take about 3 years to conclude are being concluded in 3 days. A miracle is happening, and it's all because of your hard work. जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आसिफ सईद खोसा साहब का कहना था कि मॉडल कोर्ट्स ना सिर्फ एक क्रेडिट है उन जजेस को जिन्होंने इंसाफ का निज़ाम बहाल किया, लेकिन जो आइन में फराहम किए हुए बुनियादी हकूक़ हैं सस्ता और फौरी इंसाफ का, उसी रोशनी में ये अदालतें काम कर रही हैं। मॉडल कोर्ट्स ने मंशियात और मर्डर कत्ल के केसेस को, उनकी तादाद कोई 12,000 के करीब है जिनको उन्होंने डिस्पोज ऑफ कर दिया है और मज़ीद केसेस को इसी रफ्तार पर डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं। जनाब बाकिर साहब, अगर कुछ बात कर लें डिस्पोजल रेट की, ये एक बहुत बड़ी कार्रवाई है लेकिन अभी भी सफ़र आगे बहुत तवील है। ये जो चीफ जस्टिस साहब हैं उनका भी डिस्पोजल रेट बहुत ज़्यादा अच्छा है, और अगर हम इन्हीं इंडिकेटर्स को सामने रखें, बुनियादी जो रिफॉर्म्स हैं सर, आप जानते हैं उतना ही कि कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस में आपकी अक्सरियत हैं तमाम केसेस की, और अगर हम अभी अब क्राइम से ज़रा हट जाएं, और उन केसेस की अक्सरियत का ताल्लुक़ है ज़मीन से, टाइटल का, सक्सेशन का, हर तरह के केसेस जनाब। तो जब आपने एक तरह की कार्रवाई शुरू की कि आप लैंड को कंप्यूटराइज करेंगे और फिर उसको सिंक कर देंगे अपने अदालतों के साथ, एक तो उसको मेरे हिसाब से इनकरेज करना चाहिए। जो दूसरी चीज़ है वो ये है कि पिछले कुछ सालों में इस चीज़ को अहमियत दी गई है कि जो फ्रिवलस पिटिशंस हैं उनको आप लगने ना दें या उनको इन लिमिने यानी उसी वक्त डिसमिस कर दें। तो एक तो जनाब जो आपका ज़मीन का निज़ाम है उसमें बुनियादी तौर पे इस्लाहात, और दूसरा कि आप फ्रिवलस पिटिशंस को डिस्करेज करें। बाकी भी अभी इस्लाहात पर बात करेंगे जैसे डिस्कशन चलती रहेगी। क्या कहते हैं बाकी साहब? जब ये अपना आसिफ सईद खोसा साहब ने चीफ जस्टिस का ओहदा संभाला था तो उस वक्त जो पेंडेंसी थी केसेस की तकरीबन 1.9 मिलियन केसेस उस वक्त पेंड थे, और इन्होंने अपने प्रेडिसेसर का जो एक नारा था कि मैं डैम बनाऊंगा और पाकिस्तान में पानी की किल्लत को एड्रेस होगा, तो इन्होंने उस डैम की नोयत बदल दी। और जिनका इस चीफ जस्टिस साहब ने भी हवाला दिया, आपने साथ साथ जनाब एपेलेट फोरा काम करने हैं। अभी आप इंस्टीट्यूट करते हैं, उसके बाद आप हाई कोर्ट में जाते हैं, वहाँ रिवीजन होती है, फिर सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, उसके बाद रिव्यू होता है। इसमें आपने ना सिर्फ अपने फोरा को कम करना है लेकिन साथ में जो आपकी आला अदालतें हैं वो किस तरह के केसेस को मंजूर करती हैं और काबिल समाअत समझती हैं, उसमें भी आपने पाबंदियां लगानी होंगी कि एक बार ऑफ फाइनलिटी आ जाए कि जी इसके बाद से अब कोई फैसले को रिव्यू नहीं किया जा सकता। उसमें ऑब्वियसली आपके चेक्स एंड बैलेंसेस हो सकते हैं कि जी बुनियादी हकूक़ पूरी तौर पर इन्फ्रिंज हो रहे हैं या कि आपको नई एविडेंस मिल गई है, नए ग्राउंड्स मिल गए हैं, उसमें भी आप उसमें बारीकियां ढूंढ सकते हैं और उसका हल निकाल सकते हैं। लेकिन जिस तरह आप बाहर के जुरिस्डिक्शंस में देखते हैं जहां आपकी लीव टू अपील यानी क्या ये केस काबिल समाअत है कि नहीं, उसको इतना मुश्किल से प्रोवाइड किया जाता है, उस सिलसिले में आप इस चीज़ को रखें। अभी आपकी अदालत उज़्मा इन तमाम केसेस की अक्सरियत को सुन रही है, उसको भी रिस्ट्रिक्ट करने की ज़रूरत है। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। मुझे और बाकिर सज्जाद को अपनी राय से भी आगाह कीजिए और इजाज़त दें अगले हफ्ते तक। खुदा हाफिज़।